Am I audible? Students, am I audible? Yes, sir. Yeah. Okay. So I hope everyone is clear with the construction working of solar cell. Okay. Tell me, solar cell are forward bias or reverse bias? Unbiased. 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 What do you mean by unbiased? They don't need any external power supply for their working. Okay. In the symbol, the arrows will be pointing inward or outward. Tell me, in the symbol, the arrows will Inward. be pointing inward or Inward. inward. Okay. What the inward arrow indicate? That the solar cell need external light. Solar cell need external light. Are you clear, students? Yeah. Okay. Now the next part that we are going to discuss is another interesting point, and it is LED. Sir, LED. is Huh. there a specific frequency of light which is required For what? for the solar cells to work? No, that you can do the calculation. Basically, see what happens, man. It's also a good question. See, they, what is the aim of that incoming photon? The aim of that incoming photon is to break this bond, na? Yes or no? Once the bond gets break, then only the electron and hole pair gets generated. So the energy of that incoming photon must be greater than this bond energy. You are getting? Okay. And how do we calculate that energy? Energy is given by what? H nu, or it is also given by Hc over lambda. So by using frequency or wavelength, you can calculate this energy of incoming photon. And the only precaution we have to take that this energy must be greater than what? The energy of this bond. Then only that electron will be able to break this bonding. Are you clear? Yes, sir. Okay. Now let us discuss about LED. Okay. So as I told you, in the market, if you purchase LED, na, it will look somewhat like this. एक प्लास्टिक का कैप होगा, उसके अंदर कुछ तो रहता है फिलिंग, एंड देन देर आर टू लीड. एज आई टोल्ड यू, जिसकी लेंथ ज्यादा है वो पी टाइप है, जिसकी लेंथ कम है वो एन साइड है. ओके. याद रहे कि एलईडी इज अ लाइट एमिटिंग डायोड. मतलब है क्या, अल्टीमेटली डायोड ही तो है, लेकिन ये लाइट को एमिट करने वाला डायोड है, तो इसके एरोज विल बी पॉइंटिंग आउटवर्ड. आर यू क्लियर? सो व्हाट दिस आउटवर्ड एरोज इंडिकेट? दैट द लाइट इज गोइंग आउट. What the outward arrows indicate? That the photons are emitted. So this is exactly reverse of solar cell. This is exactly reverse of what? Solar cell. And secondly, LEDs are forward bias. LEDs हमेशा क्या होते हैं? Forward bias. Solar cell क्या थे? Unbiased थे. लेकिन LEDs क्या है? Forward bias. You got the difference between solar cell and LED? So in exam you can expect the question also. What is the difference between solar cell and LED? Okay. Now let us move on to the construction of it. इसका construction क्या है वो देखते हैं. See the way I am drawing the diagram. I am just drawing the cross section. This is P side and this is N side. And these are the metal contacts. Metal contacts का मतलब क्या है? जो मैंने आपको बताया ना, ये जो leads है, ये दोनों leads है. Okay, now it should operate in a forward bias. तो forward bias में हम क्या करेंगे? We will connect P sample to the positive and we will connect N sample to what? The negative of power supply. And this supply must be variable. ये variable supply होना चाहिए, like this. Okay. Now what they will do in reality, just a minute. In reality, let's see carefully. ये जो P region है, इसके width को modify किया जाएगा. And the width will be like this. Okay. And इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक प्लास्टिक की कैप को सजाया जाता है, कुछ ऐसा. आप एलईडी भी खरीदोगे ना, तो यू कैन सी देयर इज अ प्लास्टिक कैप. देखा है बच्चों आप लोगों ने? एलईडी लाइटिंग जब अभी अपने फेस्टिवल्स में लाए होंगे, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कैप होती है. कभी देखी है बच्चों? Yes. अरे यस और नो. ओके. नाउ टेल मी व्हाट काइंड ऑफ बायसिंग इट इज.
It is a forward bias. Now we will try to understand the working of it. Okay. This is a depletion region. This is P side and this is N side. And I am giving it a forward bias. So tell me, student, this forward bias will increase the width of this barrier region or decrease the width of the barrier region? Forward biasing will increase the width of this barrier region or it will decrease the width Decrease. of the barrier region? Tell me. इसका Decrease. काम क्या है? डिक्रीज करना, विड्थ को डिक्रीज करना। और अगर विड्थ डिक्रीज हो जाती है तो यहाँ का फॉस्फोरस अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकेगा, किसे? एल्यूमिनियम को। दिस फॉस्फोरस कैन इजीली डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉस्फोरस। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, तो बेसिकली होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल. So in this process, electrons are jumping from one energy level to another energy level like this, like this. You are getting, do you remember Bohr's ka third postulate? Students, do you remember Bohr's ka third postulate? If this energy level is E2 and if this energy level is E1, so when electron from high energy level to the low energy level, electrons will release the photon of energy h nu, and that energy is also given by what? Hc over lambda. बात आ रही है समझ में? So when the electrons are actually jumping from N to P, they are moving from one energy level to another energy level, and in this process they will release the photon of energy h nu. How to calculate this? You can subtract these two energy level E2 and E1, which you can also calculate by using the formula Hc over lambda. अब देखो, ये गैप जितनी ज्यादा होगी ना, वेवलेंथ उतनी कम होगी। ये गैप जितनी कम होगी, ये वेवलेंथ उतनी ज्यादा होगी। बच्चों, बात आ रही है समझ में? Yes, sir. स्टूडेंट्स, यस। अब सवाल ये है कि यहाँ पे हमने पी रीजन में ये विड्थ को मॉडिफाई क्यों किया है? क्योंकि देखिए, ये जो फोटॉन्स निकलेंगे ना, ये फोटॉन्स कहाँ पे निकलेंगे? ये फोटॉन्स निकलने वाले हैं इस डिप्लीशन रीजन में। याद है सोलर सेल में मैंने क्या कहा था? सोलर सेल में मैंने कहा था कि जो एक्सटर्नल फोटोन है उसे हमें कहाँ पे लाना है? डिप्लीशन लेयर में लाना है। एलईडी में उल्टा होगा, डिप्लीशन लेयर में बनने वाले फोटोन को हमें बाहर लाना है। ओके, तो यही रीजन है कि इसकी विड्थ को हमने छोटा कर दिया ताकि यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाले फोटोन इजीली बाहर आ सके। बात आ रही है समझ में? सो दीज आर आउटकमिंग फोटोन। ओके, नाउ दिस गैप विल डिसाइड व्हाट विल बी द कलर ऑफ एलईडी। दिस गैप विल डिसाइड, ओके, मतलब ये गैप कितनी है? मान लो द गैप इज ईजी, तो लैम्बडा का फॉर्म क्या बनेगा? लैम्बडा का फॉर्म बनेगा एचसी डिवाइड बाई एजी। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो दे आर यूजिंग द डिफरेंट प्रैक्टिकली अलग अलग मटेरियल्स को फ्यूज करके ईजी को मॉडिफाई किया जाता है in order to get the desired wavelength. Okay, for example, I want a wavelength of 7000 angstrom. तो उल्टा कैलकुलेशन करो, 7000 angstrom means 7 into 10 raised to minus 10. HC का वैल्यू I told you it is 20 into 10 raised to minus 26 divided by what? Divided by EG. Sorry, तो EG का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? This will be 20 into 10 raised to minus 26. 7000 can you write as 7 into 10 raised to minus 7. अब इसको अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 2 पॉइंट समथिंग, माइनस 7 गोज अप प्लस 7, मतलब 10 रेज टू माइनस 19 जूल के करीब होगा। दिस इज वेरी क्लोज टू 3, क्योंकि अगर ये 21 होता तो 7 थ्रीजा आता, तो ये 2.9 के करीब होगा। सो 2.9 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। हाउ टू कन्वर्ट जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? स्टूडेंट्स, हाउ टू कन्वर्ट जूल इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट? डू यू रिमेंबर द कन्वर्जन? Divide by 1.6 डिवाइड बाय व्हाट? डिवाइड बाय into 10 raised to minus 1.6 minus 19. into 10 raised to 19. Gets cancelled off and we can have the ratio 29 over 16, मतलब अगेन 1 point something इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ऐसा मटेरियल डिजाइन करेंगे जिसकी बैंड गैप एनर्जी कितनी हो? 1 point something इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so that you will get a photon of what wavelength? 7000 angstrom. Now you all are clear, everyone? Yes, sir. Just revise the slide. Any difficulty regarding LED, you can ask me.
बच्चों नो डिफिकल्टी? Respond. No, sir. Okay. So we have covered 2 points. Number one was solar cell and number two, LED. The third point that we are going to discuss is a photo cell या फिर photo diode. So let us talk about photodiode. Okay? ये photodiode कैसे काम करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं. So once again, I am drawing a PN junction diode. Okay? Now remember the prime difference between LED and photodiode is photodiode operates in reverse bias. Photodiode will operate in which bias? Reverse bias. You are getting everyone? So solar cell कैसे थे? बच्चों सोलर सेल का स्ट्रक्चर कैसे? Unbiased. Unbiased. ओके. एलईडी कैसे थे? Forward. Forward bias. और फोटोडायोड कैसे है? रिवर्स बायस. दिस इज क्लियर एवरीवन? ओके. तो ये रिवर्स बायस है. So if this is let's say P side and this is N side, so what we will do? Okay, we will connect P to the negative and we will connect N to the positive. So this is minus and this is plus, and what kind of biasing it is? It is a reverse biasing. Okay, are you clear? Students, are you clear? Middle region को क्या कहते हैं? What this middle region is known as? बोलो बच्चों, मिडल रीजन को क्या कहते हैं? Depletion region. डिप्लीशन रीजन. ओके, व्हाट दिस रीजन इज नोन एज अ डिप्लीशन रीजन. अब मुझे बताना, अगर ये रिवर्स बायस है तो रिवर्स बायस में आपको कोई करंट मिलने का चांस है क्या? इज देयर एनी चांस टू गेट अ करंट इन अ रिवर्स बायस? No. Students, is there any chance to get a current in a reverse bias? Do you remember the reverse characteristic? Students, do you remember the reverse characteristic? Okay, the characteristics are like this. Okay, this is the reverse voltage and this one is the reverse current, and the order is microamps, मतलब 10⁻⁻⁶. So practically ये जो current है ना वो almost zero होता है. Practically ये तो breakdown voltage है, इसके बाद तो डायोड बर्बाद हो गया. ओके, लेकिन ये जो आपको ऑपरेटिंग रेंज में करंट मिलने वाला है ना, इट इज ऑलमोस्ट जीरो. ओके, सो अगर हम यहाँ पे करंट मीटर प्लेस करते हैं, सपोज आई एम प्लेसिंग अ माइक्रो एमीटर, सो टेल मी व्हाट अमाउंट ऑफ वैल्यू यू विल गेट. व्हाट विल बी द रीडिंग शोन बाय द करंट मीटर? अरे स्टूडेंट, आंसर समथिंग. व्हाट विल बी द करंट शोन बाय द करंट मीटर? इट विल बी जीरो. उसका रीजन क्या है? हमने कौन सा बायसिंग यहाँ पे प्रोड्यूस किया है? हमने प्रोड्यूस किया है रिवर्स बायस. हमने कौन सा बायसिंग दिया है? हमने दिया है रिवर्स बायस. आर यू ऑल क्लियर? Yes, sir. स्टूडेंट्स, अब आपको याद है कि P के यहाँ पे जो एल्यूमिनियम है वो यहाँ से फॉस्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज बनेंगे. सो दिस रीजन विल बी नेगेटिवली चार्ज एंड दिस रीजन विल बी पॉजिटिवली चार्ज. So this is negatively charged region and this is positively charged region. तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है. तो बच्चों मुझे बताना, यहाँ पे कौन सा फील्ड प्रोड्यूस होगा इस बाउंड्री में या इस डिप्लीशन रीजन में? कौन सा फील्ड जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड? स्टूडेंट, इफ वन साइड इज नेगेटिवली चार्ज, अदर साइड इज पॉजिटिवली चार्ज, Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. ये हमने किया है क्या? नहीं, ये बाय डिफॉल्ट हुआ है. तो इसे कहेंगे इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसे क्या कहना है? इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव? Positive to negative. मतलब यहाँ पे डायग्राम में बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड P से N की तरफ होगा या N से P की तरफ होगा? N से P. हाँ, वेरी गुड, N से P की तरफ होगा. आया समझ में? दिस इज इनबिल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस वन इज इनबिल्ट या बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड. आर यू ऑल क्लियर? Yes, sir.
Student, please tell me, are you clear? If you open the book and if you read, na, it's not easy to understand this topic. So I hope whatever I'm explaining to you all, you are getting that. Okay. अब जरा सोचते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोटोन एंटर करे, यहाँ पे सपोज कोई एक्सटर्नल फोटोन एंटर करे, तो बोलो बच्चों क्या होगा? यहाँ के बॉन्ड्स टूट सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. स्टूडेंट्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोटोन एंटर करे तो यहाँ के बॉन्ड्स टूट सकते हैं ना, और अगर बॉन्ड टूट गए तो कौन सा पेयर फॉर्म होता है? स्टूडेंट बताइए, अगर बॉन्ड टूट जाए तो कौन सी पेयर फॉर्म होती है? इलेक्ट्रॉन एंड होल की पेयर। तो इस डिप्लीशन ले गए, मान लो अगर कोई एक्सटर्नल फोटोन आता है, तो अगर एक्सटर्नल फोटोन आया तो यहाँ पे होल एंड इलेक्ट्रॉन की पेयर जनरेट होगी, होल एंड इलेक्ट्रॉन की पेयर जनरेट होगी। अब बोलो बच्चों क्या होगा अगर होल एंड इलेक्ट्रॉन की पेयर जनरेट होती है तो? ओके, मुझे बताना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या है, व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? Negative. और ये कहाँ पे जनरेट हुआ है? इनसाइड द डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स ट्रैवल करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। सही बात है बच्चों? अरे बोलो ना। Yes, sir. ओके, मतलब ये इलेक्ट्रॉन कैसे जाना चाहता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना चाहता है। इलेक्ट्रॉन कैसे जाना चाहता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन करंट की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, तो करंट कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंड यू विल गेट सम नॉन जीरो करंट, यू विल गेट सम नॉन जीरो करंट। अब जरा उल्टा सोचो बच्चों, अगर आपको कुछ करंट मिलता है, देखो मैंने रिवर्स बायस लगाया था, तो व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग जीरो करंट, but still if I'm getting some current, then what should I conclude? This current is generated because of whom? Student, tell me, this current is generated because of whom? Because of external photon. This current is generated because of whom? Because of external photon. That means some light is falling on this photodiode. What we can conclude, everyone, if we are getting some good amount of current, that means the external light is falling on this photodiode. Are you all clear? Yes, sir. Students, are you all clear? So can I use Yes, this sir. photodiode as a sensor? Can I use this photodiode as a sensor? Okay, for example ये एक रूम है मान लो, और इस रूम में हमने पूरा अंधेरा किया है, या एक बॉक्स है, ये बॉक्स पूरा क्लोज बॉक्स है, दिस वन इज अ क्लोज बॉक्स, मतलब इनसाइड देयर विल बी 100% डार्कनेस, 100% डार्कनेस, दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो अब मैं क्या करूंगा, मान लो ये एक छोटा सा पीस ऑफ स्कैनर है, इस स्कैनर को ना मैं इस पूरे बॉक्स में ऐसे 360 डिग्री में ऐसे मूव करते जाऊंगा, स्कैन करते जाऊंगा, तो हर पॉइंट पे मुझे कितने करंट की एक्सपेक्टेशन है? जीरो करंट की। लेकिन किसी एक पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे आने के बाद मुझे करंट नॉन जीरो मिलता है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि इस पॉइंट से एक्सटर्नल फोटोन अंदर जा रहा है, मतलब उस बॉक्स के उस वॉल पे क्रैक्स होने के चांसेस है, ओके, जहां से लाइट अंदर एंटर कर रही है। रियल क्लियर स्टूडेंट्स? आर रियल क्लियर? Yes, sir. सो वी कैन फिल दिस क्रैक। और फिर इस कंटेनर के अंदर, अब ये मैंने क्यों समझाया, क्योंकि अगर बड़े बड़े कंटेनर है जिसमें केमिकल फिल करना है, मान लो हमने विदाउट स्कैनिंग केमिकल फिल कर दिया और बाद में पता चला यहाँ पे क्रैक है, तो वहां से केमिकल लीकेज होगा। आर यू गेटिंग? और अगर ये थोड़ा हार्मफुल केमिकल हो, इट विल क्रिएट अ बिग ट्रबल। तो इसीलिए पहले केमिकल फिल करने के पहले इन बड़े कंटेनर्स को स्कैन करना जरूरी है, ताकि अगर उनमें कुछ फ्लॉज हो, उनमें कुछ क्रैक्स हो, तो उनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर से एक बार रीस्कैनिंग करना, कब तक स्कैन करना? जब तक हर पॉइंट पे आपको कितना करंट ना मिले? जीरो करंट ना मिले। स्टूडेंट्स,
अरे एनी डाउट और नथिंग? No, sir. पक्का? So how many points we had covered till now? Student, tell me how many points we had covered till now? What was the point number 1 of today's session? Solar cell. Solar cell. Okay. What was the point number 2 of today's session? LED. LEDs. Okay. And what is the point number 3? Photodiode. Photodiode. Solar cell are forward or reverse? Unbiased. Bias. LED. Forward bias. Forward. And photodiode. Photodiode. Reversed. Reverse. They are reverse bias. Now you all are clear? Yes, Yes, sir. sir. Pakka? Yes? Okay. Now one last point from the topic is a Zener diode. Now your theory is over, no? Nothing is left. Student, after this chapter, do you know the syllabus at least? नो रिस्पॉन्स, ठीक है। चलो जीनर डायोड क्या है वो समझते हैं। देखो ये एक ऐसा डायोड है जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है टू ऑपरेट इन अ ब्रेकडाउन रीजन। ओके, सो दिस इज अ स्पेशल डायोड which is designed to operate in which bias? It is designed to operate in reverse bias. It is designed to operate in which bias, everyone? Reverse bias. Reverse bias. Are you clear? Okay, so just a minute, huh? ओके, रिवर्स बायस में कौन सा रीजन होता है? ब्रेकडाउन रीजन। रिवर्स बायस में मेन रीजन कौन सा होता है? ब्रेकडाउन रीजन होता है। ओके, सो इफ यू रिमेंबर द फॉरवर्ड एंड रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, if you remember the forward and reverse characteristics, okay, in reverse bias the current flows somewhat like this. Reverse bias, the current flows somewhat like this. And if you remember, this voltage is known as a breakdown voltage. What this voltage is known as? It is known as a breakdown voltage. और यहाँ पे अगर आप देखो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर आप यहाँ पे पुल करोगे तो यू विल गेट वन इंटरसेक्ट, and this current is known as knee current. याद रहे, what this current is known as? It is known as a knee current. Okay, और ये जो वोल्टेज है जीरो से लेके यहाँ तक, this voltage is known as breakdown voltage. Are you all clear with these 2 points, these 2 specification, that this voltage is known as the breakdown voltage and this current, ये saturation current जो है उसे हमने क्या नाम दिया है? knee current दिया है। Okay, now as I told you कि ये जो डायोड है ये स्पेसिफिकली कौन से बायस में काम करेगा? Reverse. ओके, ओके, प्रथम ने एक डाउट पूछा था, कैन आई से फोटोडायोड इज अ एलईडी इन रिवर्स बायस? नो, यू कैन नॉट, क्योंकि एलईडी क्या करता है? लाइट को एमिट करता है और फोटोडायोड को एक्सटर्नल लाइट की जरूरत है। आर यू क्लियर? So you can't say that photodiode is a LED in reverse bias. It is just a diode which is operating in a reverse bias. You say like that. Okay. Students, are you all clear? Yes, sir. Okay. Now see, the funny part is, as I told you ना कि यहाँ पे डायोड कैसे काम करेगा रिवर्स बायस में। तो देखो ये जीनर डायोड है। ओके, अगर ये जीनर डायोड है तो जीनर डायोड का सिंबल भी देख लेते हैं। पहले तो मैं डायोड ड्रॉ करूंगा और फिर यहाँ पे ये लेटर Z लिखूंगा या फिर Z लिखूंगा ऐसे, तो दैट Z इंडिकेट अ जीनर डायोड।
What does Z indicate everyone? It is a Zener diode. So normal diode के ऊपर ये एक modification होगा symbol में, okay, and this is the Zener diode symbol. Are you clear? Okay, तो यहाँ पे इस region में अगर हम diode की बात करें तो देखो ये हमारा diode है और ये diode कैसे ऑपरेट कर रहा है? This diode is operating in a reverse bias. This diode is operating in a reverse bias. Is this clear? ये P side है जो माइनस होगी, ये N side है जो प्लस होगी. Is this clear? Okay. जो हमने वोल्टेज दिया है, देखिए हाउ यू कैन रिप्लेस दिस बाय इक्विवेलेंट सर्किट. इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम ड्रॉ करें, द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लाइक दिस. ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट. देखो ये समझ में आता है क्या? ये प्लस एंड माइनस, ये क्या था? वोल्टेज जो हमने किसके अक्रॉस लगाया? जीनर के अक्रॉस. सो वी जेड ओ. ओके, और जीनर का खुद का एक रेजिस्टेंस है जिसे हम लिखेंगे आर जेड, जिसे हम क्या लिखेंगे? आर जेड लिखेंगे. आर यू क्लियर? सो ये जो टोटल वोल्टेज है, ये टोटल वोल्टेज को हम लिखेंगे वी जेड. सो मैथमेटिकली कैन आई राइट दैट द जीनर वोल्टेज वी जेड इज इक्वल्स टू वी सफिक्स जेड ओ प्लस यहाँ से फ्लो होने वाला जो करंट होगा वो करंट क्या होगा? आई जेड. ओके, सो दैट करंट वी कैन राइट एज आई जेड मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? आर जेड. I hope this equation is clear for everyone. Student, just tell me, are you clear how I designed this formula? फिर से एक बार रिपीट करूं तो देखिए ये हमारा डायोड है. कौन सा डायोड है? जीनर डायोड है. ओके, तो ये हमारा जीनर डायोड है. जीनर डायोड कौन से बायस में काम करता है? रिवर्स बायस में. इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरवर्ड में काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन उसकी स्पेशलिटी कहाँ पे है? रिवर्स बायस में है. यू आर गेटिंग? सो ये मैंने लगा दिया प्लस, ये मैंने लगा दिया माइनस. तो ये प्लस एंड माइनस के बदले अब मैं यहाँ पे एक बैटरी ड्रॉ करके बता रहा हूँ जिसका वोल्टेज कितना है? वी जेड ओ. और ये जो डायोड है उसका खुद का एक रेजिस्टेंस होगा. ओके, एंड दैट रेजिस्टेंस इज आर जेड, रेजिस्टेंस ऑफ जीनर डायोड. ओके, तो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जीनर डायोड. नाउ यू ऑल आर क्लियर? तो इसका जो टोटल वोल्टेज है उसे मैंने नाम दिया वी जेड. And how I can calculate that VZ? VZ is equals to VZO. Okay, और फिर यहाँ से फ्लो होने वाला करंट होगा IZ into RZ because current into resistance is the voltage. So this is how we can calculate VZ. Okay, students, are you all clear with this formula? Yes, sir. Yes. Okay. अब देखिए इसके अंदर ना दो इफेक्ट्स होते हैं. जो सबसे पहला इफेक्ट है उसे कहा जाता है जीनर इफेक्ट. जो सबसे पहला इफेक्ट है उसे क्या कहा जाता है? जीनर इफेक्ट. डू यू रिमेंबर के पीएन जंक्शन डायोड में यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. यहाँ पे कौन सा फील्ड बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है. इज इज क्लियर? ओके, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो अराउंड 3 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर होता है. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना है? ऑलमोस्ट 3 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर है. इज इज क्लियर एवरीवन? And this electric field, okay, and because of this electric field there will be a certain value of Zener voltage. अब देखिए जब तक ये वोल्टेज की वैल्यू 4 वोल्ट से कम है, जब तक ये वोल्टेज की वैल्यू कितने से कम है? 4 वोल्ट से कम है, तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होने वाला है? जीनर इफेक्ट. लेकिन अगर इस वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट को क्रॉस कर देती है तो जो इफेक्ट प्रोड्यूस्ड होगा उसे कहा जाता है एवलांच इफेक्ट. ओके, दैट इफेक्ट इज नोन एज एवलांच इफेक्ट. ओके, ये बच्चों को समझ में आता नहीं है जब एमसीक्यूज आते हैं. तो जीनर इफेक्ट कब काम करेगा? व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज, व्हिच वोल्टेज आई एम टॉकिंग अबाउट, जीनर वोल्टेज, इज लेस देन 4 वोल्ट. ओके, और अगर इसकी वैल्यू 6 वोल्ट को क्रॉस कर देती है तो एवलांच इफेक्ट होगा. तो फिर सवाल ये है कि 4 और 6 के बीच में हो तो क्या? तो इसके बीच में आपको दोनों इफेक्ट्स दिखाई देंगे, जीनर भी दिखाई देगा और एवलांच भी दिखाई देगा. ओके, अब बोलोगे एवलांच होता क्या है? सो द वेलोसिटी, ओके, वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ओके, वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस. आर यू क्लियर? किसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली है? वेलोसिटी ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इंक्रीजेस. And that happens when the value of Vz is greater than 6 volt. Are you clear? Yes, sir. Students, Pakka? Yes, sir. Just revise this slide.
नाउ स्टूडेंट टेल मी, आपके घरों में जो सप्लाई आता है वो एसी है या डीसी है? AC. एसी है। लेकिन आपके जो मैक्सिमम गैजेट्स हैं, आपके घरों में जो मैक्सिमम गैजेट्स हैं, उनको किसकी जरूरत होती है? DC. बोलो ना, उसको उसको किसकी जरूरत है? डीसी की जरूरत है। यू आर गेटिंग ओके। अब दिक्कत क्या होती है, मैंने बताया था आपको, आपको जो डीसी मिलता है ना, डू यू रिमेंबर आई एक्सप्लेन यू अबाउट रिपल फैक्टर एंड ऑल? ओके, दैट डीसी इज नॉट अ स्ट्रेट डीसी, इट इज अ पल्सेटिंग डीसी लाइक दिस। और अगर ऐसा पल्सेटिंग डीसी हम अपने डिवाइस को देंगे तो आउटपुट विल नॉट बी कांस्टेंट और इट विल नॉट बी अप्रोप्रिएट। सो व्हाट आई वांट अ परफेक्ट स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ऐसा आई वांट ऐसा आउटपुट जो 100% शुद्ध डीसी हो। अरे क्लियर? ओके, मतलब हमें कांस्टेंट आउटपुट की जरूरत है। हमें किसकी जरूरत है? एक कांस्टेंट आउटपुट की जरूरत है। ओके, तो सपोज इफ वी हैव अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई, हमारे पास जो सप्लाई है वो कैसा है? अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेगुलेशन? स्टूडेंट, रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? हैव यू हर्ड दिस टर्म बिफोर, रेगुलेटर? आपके घरों में है रेगुलेटर? फैन रेगुलेटर फैन है? Yes, regulator. sir. क्या करता है फैन रेगुलेटर? बोलो ना, फैन रेगुलेटर करता Changes क्या the है? output. हाँ, स्पीड को एडजस्ट करता है ना, फैन की स्पीड को एडजस्ट करता है। मतलब वो एक्चुअली क्या करता है, फैन को मिलने वाला जो वोल्टेज है ना उसको मॉडिफाई करता है। फैन को मिलने वाले वोल्टेज को मॉडिफाई करता है। देखो, पावर का फॉर्मूला क्या है? वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज को कम करेंगे तो पावर कम होगी, वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो पावर बढ़ जाएगी। तो विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटर यू आर एक्चुअली चेंजिंग द पावर ऑफ द सिग्नल। आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके, अब देखिए हमने क्या किया। ओके, हमने एक लोड रेजिस्टेंस लिया है। बच्चों, लोड रेजिस्टेंस क्या होता है? जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट लेना है। और इस लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में मैंने जीनर डायोड लगाया है। और ये जीनर कैसे होना चाहिए? रिवर्स बायस। ये जीनर कैसे होना जरूरी है? रिवर्स बायस होना जरूरी है। यहाँ पे एक रेजिस्टर मैंने सीरीज में लगाया। ओके, सर्किट डायग्राम की अरेंजमेंट समझ लो। तो ये हमारा जीनर डायोड है जिसका जीनर वोल्टेज होगा VZ। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस है जो है RL। ओके, और ये है हमारा सीरीज रेजिस्टर RS। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RS? इट इज अ सीरीज रेजिस्टेंस। अब पावर सप्लाई जो हमें सिग्नल देगा वो है VI, वेयर दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। क्योंकि देखो, डायोड की P साइड माइनस है और N साइड प्लस है। तो बच्चों बताना, ये जीनर डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ या रिवर्स बायस हुआ? बच्चों बताइए, ये डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ या रिवर्स बायस हुआ? Reverse. Reverse. रिवर्स बायस। और जीनर का काम ही है टू ऑपरेट इन रिवर्स बायस। अब देखिए, यहाँ से जो फ्लो होने वाला करंट है I, जब इस जंक्शन पे आएगा ना, इट विल ब्रेक इनटू टू पार्ट। यहाँ पे कितना करंट जाएगा? IZ, और यहाँ पे कितना करंट जाएगा? IL। ओके, सो बाय यूजिंग द किरचॉफ करंट लॉ, कैन आई राइट टोटल करंट इज इक्वल्स टू IZ प्लस IL? स्टूडेंट्स, यस और नो? Yes, sir. इज इट करेक्ट? यस। ओके, अब देखिए, ये जो है ना है जीनर डायोड, वो कौन से रीजन में काम करने वाला है? ये ब्रेकडाउन रीजन में काम करने वाला है। ओके, अगर आपको याद हो तो इस करंट को हमने क्या नाम दिया था? नी करंट। और यहाँ पे एक मैक्सिमम करंट की वैल्यू होती है I max। तो आपको जो ऑपरेटिंग करंट है ना, ऑपरेटिंग करंट मतलब मैं कौन से करंट की बात कर रहा हूँ? जीनर करंट की, IZ की वैल्यू इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। मान लो ये IZ की वैल्यू मैंने सेट कर दी। अब मुझे बताइए बच्चों, फॉर दिस वैल्यू ऑफ IZ द वैल्यू ऑफ जीनर वोल्टेज विल बी कांस्टेंट और नॉट? बच्चों बताइए, करंट अगर इस रेंज में कहीं पे भी फ्लक्चुएट होता है, लेकिन इस पूरी रेंज के लिए देखो ना, VZ की वैल्यू फिक्स है। स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड। और Yes, द sir. करंट रेंज ऑफ IK से लेके I max में VZ की वैल्यू फिक्स है। अगर VZ की वैल्यू फिक्स है तो मुझे बताना ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? डायोड एंड RL, हाउ आर दे कनेक्टेड? स्टूडेंट्स टेल मी, डायोड एंड RL हाउ आर दे कनेक्टेड? Parallel आर दे कनेक्टेड इन पैरेलल? पैरेलल में क्या सेम होता है? voltage. पैरेलल में क्या सेम होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जो वोल्टेज डायोड के अक्रॉस है वही वोल्टेज किसके अक्रॉस डेवलप्ड होगा?
बोलो बच्चों, जो वोल्टेज Load. डायोड के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज, मान लो डायोड के अक्रॉस 5 वोल्ट आया VZ, तो RL के अक्रॉस भी कितना वोल्टेज आएगा? 5 वोल्ट। स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? Yes, sir. Okay, that means this load resistance will get a constant output voltage. This load resistance will get a constant output voltage. और हमारी रिक्वायरमेंट भी क्या है? We require a constant voltage ना at the output end. ओके मतलब जो हमारा आउटपुट डिस्प्ले होगा ना, या जो आउटपुट गैजेट है, ओके उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगे. यू विल गेट अ वेरी स्मूथ कर्व और यू गेट अ वेरी फ्लैट लाइन एट द आउटपुट एंड. ओके तो हमने जीनर को किसकी तरह यूज किया है? हमने जीनर को एज अ वोल्टेज रेगुलेटर यूज किया है. जीनर को हमने कैसे यूज किया? एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. अगर मैं IZ की वैल्यू थोड़ी सी मॉडिफाई कर देता हूँ तो VZ की वैल्यू भी बदल जाएगी, लेकिन उतना ही वोल्टेज फिर किसके अक्रॉस आ जाएगा? RL के अक्रॉस. आर यू गेटिंग? Yes, sir. स्टूडेंट, आर यू गेटिंग? अब आप बोलोगे कि आपको ये VZ का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा? तो लैमिंगटन रोड जाके अगर आप जीनर डायोड मांगोगे ना, तो उसके साथ एक डेटा शीट आती है और उस डेटा शीट में ये वैल्यू स्पेसिफाई होती है. कौन सी वैल्यू? VZ की वैल्यू. आर यू क्लियर? Yes. स्टूडेंट्स, पक्का समझ में आया है? Okay, Yes. so we have completed this chapter of semiconductor. I hope all the points are clear. In case you face any difficulty, you can ask me. So Student? this has to be a rectified current, right? Then it will go to the Zener Sorry? diode. Yes, yes, yes. So the current has to be rectified, right? Yes, yes, Like AC rectified. current. Yeah, yeah, yeah. It was DC, but not 100% DC, no? It was a combination of AC